Hello students. So dear students, in molecular basis of inheritance, today we have to study very important topic of this chapter, that is structure of DNA. Dear students, we know DNA, it is genetic material. It is responsible for expression and transmission of character. All the genetic information, it will be carried as well as coded inside DNA. So all the characters of our body, it is actually designed by DNA. So it is very important biomolecule in our body. So we can say it is the master molecule of our body. It is the key molecule. It is secret of life. So very important biomolecule, that is about the DNA. Now dear students, whenever we study about DNA, we come to know a very famous model of DNA, that picture of DNA, like that, Watson and Crick model, which explains about the structure of DNA. In this structure of DNA, we know students, it is made up of such type of two strands. So DNA consists of, in structure of DNA, it consists of two strands, and that two strands, they are made up of polynucleotide. So it is consist of two polynucleotide strands. Polynucleotide, it is the polymer, we know, means any polymer means it is made up of monomer. So DNA, it consists of two polynucleotide strand, means strand of DNA, it is actually the polymer. And we know polymer, it is made up of many monomeric unit. So here each strand, each polynucleotide strand, it is now made up of monomer, and that is now nucleotide. So very important word, that is the nucleotide, means strand of DNA, it is made up of what? Many nucleotide. So students, we can say nucleotide is the structural and functional unit of DNA now. जैसे दीवार है और दीवार में बहुत से ईंटें, जो उसका एक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, वैसे डीएनए के स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर में विच इज वन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड. ओके स्टूडेंट, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है डीएनए स्ट्रैंड का, वो कौन से केमिकल से बना हुआ रहेगा? ओके, सो वी हैव टू स्टडी. हमको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्चुअली दो पार्ट्स में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स. पहले पार्ट में डीएनए के का केमिकल नेचर, केमिकली वो जो न्यूक्लियोटाइड है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, वो कौन से मटेरियल से, केमिकल से बना हुआ है. और सेकंड पार्ट में हम एक्चुअल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, विच इज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक. तो न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. ये जो मोनोमेरिक यूनिट है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का, दैट न्यूक्लियोटाइड, इट इज नाउ मेड अप ऑफ थ्री केमिकल कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स. तीन केमिकल से बना हुआ है, केमिकली सिंपल है. ओके, हम देख रहे हैं अब न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर, ओके, या डीएनए का केमिकल कंपोजिशन के बारे में. केमिकली इट इज नाउ कंसिस्ट ऑफ थ्री केमिकल कंपोनेंट्स. वन, इट इज नाउ पेंटोज शुगर. Second, it is the phosphate group, and third one, it is now nitrogen bases. So nucleotide, that is the monomer of polynucleotide, that is the polymer of DNA. It is now chemically made up of pentose sugar, first molecule. Second molecule, it is the phosphate group, and third one, it is nitrogen bases. Okay, so students, we have to study the structure of these three chemical molecule by which a nucleotide is made up of. Okay, first chemical pentose sugar के बारे में देखते हैं. In pentose sugar structure, so in this way there is the presence of pentagonal ring structure. So here carbon, oxygen, carbon, like that. Okay, so in pentose sugar, which is actually now of two type, दो टाइप का होता है pentose sugar. One, it is the deoxyribose type of pentose sugar, which is present in DNA, जो DNA में.
and second one type of the sugar, pentose sugar, is ribose type, which is present in RNA. So pentose sugar as a general, it will have such type of pentagonal ring structure. There is key atom oxygen. There is the presence of after oxygen first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and fifth carbon present here outside this ring. Okay, so that is the carbon 5. So in this way, 5 carbon ring, out of that 4 carbon is present inside a ring and fifth carbon is present outside a ring. Okay, and oxygen is there. Now students, at each carbon, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4 and carbon 5, it will have some other group. So here there is H and OH on carbon 1. Second carbon, it is now H and H. ध्यान से देखो, carbon 2, H and again H. Third carbon, H and OH. Fourth carbon, here there is the CH2, OH and again H. Okay student, so in this way there is the presence of such type of the structure. Now ये जो शुगर हमने बनाया पेंटोज शुगर जो है, that pentose sugar, it is of now sugar of DNA, means deoxyribose type. Dear student, it is now deoxyribose type of sugar, that is the sugar of DNA. So in this structure, the empirical formula अगर हम निकालते हैं कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन है इस स्ट्रक्चर में, ओके, तो देयर इज टोटल 5 कार्बन, C5, there is total hydrogen 10 in number, H10, and oxygen 4 in number, C5H10O4. That will be empirical formula of this deoxyribose type of the sugar, that is the sugar of DNA. Okay, इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स, at carbon 2 position the groups which are present H and H. Okay, ध्यान में आया? अब देखिए सेकेंड टाइप का जो पेंटोज शुगर है, विच इज द शुगर ऑफ आरएनए, इट इज राइबोज शुगर, और ये जो डीएनए की शुगर है, इट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर. अब ये दोनों शुगर में एक ही माइनर डिफरेंस है स्टूडेंट्स, एंड दैट माइनर डिफरेंस रिगार्डिंग विद दिस पोजीशन. ओके, इस कार्बन सेकेंड पोजीशन पर अगर मैं एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, OH ग्रुप, H के बजाय OH ग्रुप कर दूं, तो दैट पर्टिकुलर शुगर इट इज नाउ राइबोज टाइप. ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब है राइबोज टाइप की शुगर में, आरएनए की शुगर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है डीऑक्सीराइबोज के कंपैरिजन में, और वो है देयर विल बी वन मोर ऑक्सीजन वेयर एट कार्बन सेकेंड पोजीशन. ओके, इसका मतलब अगर हम राइबोज शुगर का इंपेरिकल फार्मूला बनाते हैं, राइबोज शुगर, तो क्या आएगा नेचुरली, देयर विल बी सेम कार्बन C5, सेम हाइड्रोजन H10, बट डिफरेंस रिगार्डिंग विथ ऑक्सीजन. तो बताइए ऑक्सीजन के बारे में क्या, वन ऑक्सीजन मोर और वन ऑक्सीजन लेस इन राइबोज, तो एट कार्बन 2 पोजीशन H के बजाय OH मींस वन ऑक्सीजन मोर. तो व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन, दैट इज द O5. दैट विल बी empirical formula of the ribose. Clear students? So first chemical of nucleotide which is made up of these 3 chemical, उसमें से पहला हमने डिस्कस कर रहे हैं हम पेंटोज शुगर के बारे में. पेंटोज शुगर डीएनए में जो है वो डीऑक्सीराइबोस टाइप की, एंड दैट इज सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, ओके, रिगार्डिंग विद दैट डीऑक्सीराइबोस टाइप ऑफ शुगर. ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केमिकल कंपोजिशन की तरफ जाते हैं. Second chemical present in DNA, it is now phosphate group or phosphate radical. Okay, so phosphate group or phosphate radical, it is now have such type of simple structure. So phosphate group, it is present in the form of phosphoric acid. Phosphoric acid. So phosphate group or phosphate radical, it is present in the form of phosphoric acid H3PO4.
So such type of the structure phosphate is there. We know phosphate have valency 5. Out of that 2 valencies it will be satisfied by double bonded oxygen, and there will be presence of 3 such type of hydroxyl groups. Okay, 3 OH groups like that. Okay, so that is H3PO4 phosphoric acid. The phosphoric acid when it is present in aqueous medium, okay, aqueous medium में स्टूडेंट्स ये phosphoric acid हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा. ओके, एंड it will become the phosphate radical. So there will be that hydrogen, it will be loose like that, and it will acquire the negative charges. Okay, and in this way there will be PO4 3 negative charges, means there is the presence of negative charge on this phosphate. और यही रीजन है स्टूडेंट्स कि phosphate it is or actually DNA have a negative charge. जो DNA होता है उस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होता है. The reason is that there is the presence of phosphate which will have such type of negative charge. Due to that DNA is negative charge. Okay, so second chemical phosphate group or phosphate radical. Phosphate group, it is present in the form of phosphoric acid H3PO4. It is actually the structure of H3PO4. Okay, 1 double bonded oxygen, 3 highly reactive hydroxyl groups. Okay, that phosphoric acid when it is present in aqueous medium it will form the actually phosphate radical, means it will have the tendency to lose hydrogen and in this way acquire the negative charges. That's why DNA have negatively charged. Okay, so that is second molecule, that is the phosphate group. Third one chemical, it is now nitrogen bases. Dear students, in DNA, so actually nitrogen bases, they are nitrogen containing aromatic heterocyclic rings are there. Okay, so nitrogen bases, it is of 2 type, that is purine type of nitrogen base and pyrimidine type of nitrogen base. Purine type of nitrogen bases and pyrimidine type of nitrogen bases, such type of 2 type of nitrogen bases they are present in DNA. And purine and pyrimidine type of nitrogen bases, they are now aromatic heterocyclic compound. Okay, so the ring of purine and pyrimidine, they consist of 2 different atoms and therefore it is aromatic and heterocyclic. Okay, तो प्यूरिन और पायरिमिडिन का एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर. नाउ इन प्यूरिन it is actually now double ring compound. Okay, and pyrimidine it is now single ring compound. Purine double ring compound, pyrimidine single ring compound. दोनों स्ट्रक्चर में रिंग है. ओके, पर प्यूरिन की स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स है, डबल रिंग कंपाउंड. पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग है. ओके, तो स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. प्यूरिन डबल रिंग कंपाउंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर इज देयर. So such type of hexagonal ring, and here there is another ring like that. Okay, so that is the first ring. Here at this position there is now nitrogen, students. Okay, here there is nitrogen, here there is nitrogen. So first hexagonal ring and then second ring attached to it. So 2 rings are there, heterocyclic, means there is the carbon as well as nitrogen. So here at this corner there is carbon. Okay, and here there is the nitrogen. So heterocyclic and double ring. Okay, so 2 rings they are attached like that. Here nitrogen it is present, so that is first position. ये जो corner है it is labeled as
first position, second, third, fourth, fifth and sixth position, then 7, 8 and 9. ये ऐसे हमको ध्यान में रखना है इस मैनर में अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर. सो बाकी जो जगह है नाइट्रोजन के अलावा, ओके, वो कार्बन है. और नाइट्रोजन यहाँ पर कौन कौन से पोजीशन पर है देखते हैं. नाइट्रोजन एट फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेवेंथ एंड नाइन्थ पोजीशन there is the nitrogen. Okay, so there will be like the double bond. Here there is the double bonded. Okay, so in this way here there is double bond. So in this way there is the particular structure of purine. Okay, basic skeleton of purine जो दो टाइप का है. Now when that particular bond break, there will be hydrogen will be available here at this position. ओके, सो डियर स्टूडेंट, इस पोजीशन को प्रॉपरली ध्यान में रखते हैं. 9th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन की 9th पोजीशन, बिकॉज ये ऐसी साइट है, ऐसी पोजीशन है जहां पर प्यूरिन नाइट्रोजन बेस ये शुगर मॉलिक्यूल को अटैच रहेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड बनाते समय ये जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन 9 पोजीशन पर हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए शुगर के साथ में. ओके, तो इसलिए ये प्रॉपर ध्यान में रखते हैं. 9 पोजीशन नाइट्रोजन है 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर. उसमें से कौन सा नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन? दैट इज 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन. ओके स्टूडेंट, सो डबल रिंग कंपाउंड दैट इज प्यूरिन. ओके, प्यूरिन जो है यहां पर दो टाइप का होता है डीएनए में. सो इट इज 2 टाइप ऑफ प्यूरिन. That is adenine, which is represented by A, and guanine, that is represented by G. So adenine or guanine, these are the 2 types of this purine nitrogen base. तो ये बेसिक स्केलेटन और इसके 2 टाइप एडेनाइन एंड guanine. ओके स्टूडेंट्स, प्यूरिन के बारे में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. पायरिमिडिन. Pyrimidine, it is now single ring compound. So pyrimidine, it will have such type of single ring. Okay, at this position there is the presence of nitrogen. तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो इस टाइप से है. There is first position, first nitrogen, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay, so there is double bond and again double bond. Okay, so here this nitrogen, अभी यहाँ पर नंबरिंग हमको ऐसे ध्यान में रखना है फिर से अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर. ये जो नाइट्रोजन है ये फर्स्ट पोजीशन पर, देन सेकंड यहाँ पर कार्बन है, थर्ड फिर से नाइट्रोजन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ दैट इज द कार्बन. ओके, so nitrogen in this ring is present where? कौन से पोजीशन पर है नाइट्रोजन? so position number 1 and that is third. okay, so at these 2 positions there is the nitrogen और बाकी जगह कार्बन. okay, अब ये जो नाइट्रोजन है, that nitrogen when it will break the bond, now there is the availability of this hydrogen. so that particular hydrogen which is present in on number 1 position of this ring, it will be now involved in bond formation with nucleotide formation. okay, तो शुगर के साथ ये वाला जो नंबर का नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन अवेलेबल करवाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. तो ये 2 पोजीशन स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है. ओके, प्यूरिन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा 9th पोजीशन पर, दिस वन. और पायरिमिडिन में there will be position number 1 nitrogen. okay, nitrogen which is present at position number 1, it will be involved in bond formation. Clear student? So in this way this is the basic skeleton of purine which is of 2 type, that is adenine and guanine. It is basic skeleton of pyrimidine single ring compound, and pyrimidine it is of now 2 types students, that is thymine which is represented by T. so thymine
and guanine, which is represented by G. So thymine and guanine. Once more, one more pyrimidine. It is now present in particularly RNA, okay, and that is now uracil, that is represented by EU. तो पायरिमिडीन जो है वो अब 3 टाइप का है स्टूडेंट्स, थाइमिन, ग्वानिन एंड यूरैसिल. पर आउट ऑफ दीज 3 डीएनए में जो पायरिमिडीन है वो है थाइमिन और ग्वानिन. इन डीएनए यूरैसिल इज नॉट प्रेजेंट. बट इफ वी स्टडी अबाउट आरएनए, in RNA thymine is not there. In place of that there will be uracil. Okay, तो नाइट्रोजन बेसिस डीएनए में जो है वो 4 टाइप के हो गए स्टूडेंट्स. 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए. ओके, 2 प्यूरिन, 2 पायरिमिडिन. प्यूरिन में एडेनाइन एंड ग्वानिन, पायरिमिडिन में थाइमिन, साइटोसिन. सो 4 नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए, दे आर एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. ओके, but in case of RNA there are 4 nitrogen bases are adenine, guanine. So purine nitrogen base it will be similar. Difference is now with regarding with pyrimidine. So in RNA thymine is not there, it is replaced by uracil and cytosine. Okay, तो cytosine भी same है, सिर्फ uracil में difference है. तो major difference, basic difference in nitrogen base of DNA and RNA बताइए क्या है. In case of DNA there is thymine, but in RNA there is no thymine. In place of that there is uracil. Okay, तो ये एक डिफरेंस है प्यूरिन और पायरिमिडिन मींस नाइट्रोजन बेसिस के बारे में. ओके स्टूडेंट, तो डीएनए और आरएनए के बेसिक केमिकल कंपोजिशन में अभी तक के हमने देखे 2 जगह पर मेन डिफरेंस आया. ओके, एक डिफरेंस है शुगर के बारे में, पेंटोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज टाइप, इन आरएनए इट इज राइबोज टाइप. ये एक डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस है पायरिमिडिन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस के बारे में. ओके, तो पायरिमिडिन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन डीएनए दे आर एडेनाइन, सॉरी दे आर थाइमिन एंड साइटोसिन. ओके, बट इन केस ऑफ आरएनए thymine is not there. Thymine it is replaced by uracil. So uracil and cytosine. So in DNA there is no thymine. Sorry, in DNA there is thymine, not uracil. But in case of RNA there is no thymine. There is thymine is replaced by uracil. Okay. So that is the basic difference regarding with DNA and RNA structure. So dear student, there are such type of 3 chemical molecule by which this nucleotide of DNA, monomer of DNA, it is made up of. Okay. अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड ऐसी स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक शुगर रहेगा जिसको अटैच फॉस्फेट ग्रुप है और उसी को अटैच है नाइट्रोजन बेस. ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कैसे बॉन्डिंग रहेगी, इसके बारे में देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में. Okay. Now, dear students, we know it is the pentose sugar. So here there is carbon. Okay. So that is the pentose sugar. Carbon 1 position क्या था यहाँ पर? H and OH. Okay. यहाँ पर क्या था? H and H, H and OH. Here CS2OH and H. ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया डीऑक्सीराइबोज टाइप ऑफ शुगर. अब न्यूक्लियोटाइड बनाते समय, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए दैट शुगर मॉलिक्यूल इट विल बी अटैच्ड विथ 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल एज वेल एज 1 नाइट्रोजन बेस आउट ऑफ 4. ओके, सो अब कार्बन 1 पोजीशन पर, इस पोजीशन पर इट विल बी हैव प्यूरिन और पायरिमिडिन नाइट्रोजन बेस अटैचमेंट. किस टाइप से अटैच होगा वो, उसके बारे में देखते हैं. तो सपोज इट इज पायरिमिडिन. सो इन दिस वे स्टूडेंट, इट इज पायरिमिडिन, हियर इट इज नाइट्रोजन. ओके, एंड हियर इट इज, ये बॉन्ड अगर ब्रेक होता है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ
release of such type of hydrogen. Okay, so in this way there is position number 1 of nitrogen. Okay, so that is pyrimidine nitrogen base. Here it is carbon 1 position पर there is hydroxyl group, OH group. अब students, when that pyrimidine, it will be attaches with this carbon 1 position, the OH of carbon 1, it will be combined with hydrogen which is attached with nitrogen of this pyrimidine. Okay, so there will be release of H2O, water molecule. Okay, and there is the formation of now bond. H2O release होने के कारण there will be formation of bond in between carbon and nitrogen. Okay, student. So carbon 1 of deoxyribose type of sugar, it will be now attached with nitrogen of this pyrimidine ring. Okay, and in this way there will be formation of such type of bond. That bond, it is now known as N-glycosidic bond. So student, it is now N-glycosidic bond. Means deoxyribose type of the sugar, it is attached with pyrimidine और प्यूरिन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस. तो प्यूरिन या पायरिमिडिन वो दो में से कोई भी हो सकता है, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन. पर अगर वो पायरिमिडिन है तो नाइट्रोजन 1 पोजीशन पर वो अटैचमेंट रहेगी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की. अगर वो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, मैंने बताया था इसके पहले, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है तो कहां पर अटैच रहेगा? दैट इज एट नाइट्रोजन 9 पोजीशन पर. ओके, तो नाइट्रोजन 9 पर अटैचमेंट रहेगी और पायरिमिडिन के लिए नाइट्रोजन 1 पर अटैचमेंट रहेगी. H2O रिलीज होगा कार्बन 1 पोजीशन से OH और नाइट्रोजन से H, OH एंड H, H2O will be released. Okay, now there will be formation of bond in between carbon 1 of sugar and nitrogen 1 of this pyrimidine, that is now known as N-glycosidic bond. Okay, so N-glycosidic bond formation, it will be occur there in case of that particular structure. अब ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इट इज नाउ नोन एज न्यूक्लियोसाइड. ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसाइड. ओके, इस न्यूक्लियोसाइड में अब अगर फॉस्फेट अटैच है, ओके, तो देन इट विल बी नाउ न्यूक्लियोटाइड. तो देखते हैं फॉस्फेट कैसे कहां पर अटैच रहेगा. ओके, सो वी नो स्टूडेंट फॉस्फेट स्ट्रक्चर, P double bonded oxygen, 3 OH groups are there like that, second OH and third OH like that. Okay, now it is carbon 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, carbon 5 position पर हम देख सकते हैं CH2OH. Okay, so OH of this deoxyribose sugar, that is OH of deoxyribose sugar, it will be combined with H of phosphate. Okay, so naturally there will be removal of what? There will be removal of H2. Okay student, so H2O will be removed और क्या बचेगा यहाँ पर? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में अब ऐसा बॉन्ड बनेगा. ओके, सो इन दिस वे, और इसमें इंप्रोवाइज करके हम ऐसा बना सकते हैं ऑक्सीजन, ओके, बॉन्ड विथ कार्बन 5. ओके, सो इन दिस वे that particular bond formation, it will be takes place in between sugar and phosphate. तो शुगर का कार्बन 5 जो है वो इस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा फॉस्फेट के साथ. ओके, सो इन दिस वे नाउ देयर विल बी एडिशन ऑफ दिस फॉस्फेट. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये जो बॉन्ड है इसको सिंपली शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बोल सकते हैं. ये जस्ट एक कोवैलेंट बॉन्ड है, इट इज नॉट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, डीएनए में जो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो ये वाला नहीं है, वो जब बनेगा तब मैं आपको बताऊंगा आगे. ठीक है, तो ये जस्ट एक शुगर फॉस्फेट कोवैलेंट बॉन्ड है. ठीक है, जो फॉस्फेट को शुगर से अटैच करवाने में मदद करेगा. अब ये जो शुगर है, deoxyribose type of sugar 1 molecule, it will be attached with that is purine or pyrimidine type of nitrogen base. तो ये बन गया था न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड को कौन अटैच है? दैट इज द फॉस्फेट. सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट,
नाउ इट विल बी न्यूक्लियोटाइड। ये बन गया तीनों से मिलके न्यूक्लियोटाइड। क्लियर बच्चों? न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर अटैच विथ एनी वन नाइट्रोजन बेस, ओके, और न्यूक्लियोटाइड मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तीनों मिलके, मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, दैट विल बी न्यूक्लियोटाइड। मीन्स न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट हटा देते हैं दैट विल बी न्यूक्लियोसाइड, ओके। तो वैसे हमको न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा लेन देन नहीं है, हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में ज्यादा देखेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब बच्चों ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जो डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, सभी न्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए के स्ट्रैंड में रहेंगे मौजूद। तो इसमें से पेंटोज शुगर जो है, डीऑक्सीराइबोस टाइप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये कॉमन है, सेम हो, ठीक है। डिफरेंस काय में हो सकता है? रिलेटेड विथ अटैचमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस, ओके, क्योंकि नाइट्रोजन बेसेस देयर आर 4 टाइप, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट न्यूक्लियोटाइड जो है वो एडेनाइन वाला न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, डीऑक्सी एडेनोसिन, ओके, या ग्वानिन वाला डीऑक्सी ग्वानोसिन, या थाइमिन वाला डीऑक्सीथाइमिडिन, या साइटोसिन वाला डीऑक्सीसाइटिडिन, ओके। तो देयर में बी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, दे में बी प्रेजेंट देयर, डिपेंडिंग की कौन से टाइप का नाइट्रोजन बेस ये कार्बन 1 पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को अटैच, क्लियर। तो बाकी शुगर और फॉस्फेट तो कॉमन है, ओके। 4 अलग अलग टाइप के जो नाइट्रोजन बेसेस है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन से टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। मींस डीएनए में कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं? दे आर ऑफ 4 टाइप, ओके, हैविंग एडेनाइन और ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया एक मोनोमरिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड, ओके। डीएनए की स्ट्रैंड में ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को अटैच करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 स्ट्रैंड मिला के देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? दैट इज द डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। तो ये पहला पार्ट हमने देखे स्टूडेंट अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, ओके। सेकेंड पार्ट में अब हम पढ़ते हैं डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, ओके, विच इज प्रपोज्ड बाय और विच इज स्टडीड बाय वैटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट, ओके स्टूडेंट। तो मैं थोड़ा क्लीन कर लूं व्हाइट बोर्ड को, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलो स्टूडेंट्स, वैटसन और क्रिक मॉडल की स्ट्रक्चर देखते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में इसके पहले हमने देखे, या केमिकल नेचर ऑफ डीएनए के बारे में। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए who explain the actual structure of DNA. So in this way there is Watson and Crick model. सबसे पहले डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। So DNA structure it was actually studied by Watson and Crick. So in the year 1953 two scientists was there, that is Watson and Crick. In the year 1953 they prepare one model in laboratory by using wires की मदद से उन्होंने लेबोरेटरी में एक मॉडल बनाया कि डीएनए की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ये एक्सप्लेन करने के लिए, ओके। एंड दैट मॉडल इट वाज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेजिंग स्टडी। सो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक इमेजेस जो होते हैं, विल्किंस और फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने, सो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज या इमेजेस बनाए, और वो इमेजेस के इस्तेमाल करके, वो इमेजेस की इंफॉर्मेशन लेके वैटसन और क्रिक ने वायर्स की मदद से डीएनए का एक मॉडल बनाया, जो बहुत ही फेमस मॉडल है, वैटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के नाम से, जो एक्सप्लेन करता है डीएनए की स्ट्रक्चर को, ओके स्टूडेंट। एंड फॉर दैट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वैटसन, क्रिक एंड विल्किंस,
ये तीनों को 1962 का नोबेल प्राइज दिया गया फॉर मेडिसिन। ओके, तो उसमें रोजलिन फ्रैंकलिन नहीं थे, बिकॉज उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई थी अर्ली एज में, 38 के एज में। ठीक है, तो वैटसन, क्रीक एंड विल्किंस, ये तीनों को कंट्रीब्यूट किया गया नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन द ईयर 1962। ओके, तो 4 scientists they contributed for the discovery of DNA, we can say, for the preparing model of that DNA: Watson, Crick, that is Franklin and Wilkins. Okay student, so that is about discovery. Now according to Watson and Crick, DNA, it is made up of, or it is helical structure. Helix means it is made up of 2 strands which are polynucleotide. Okay, so in this way, that is one strand, this is second strand. So in this way, DNA, it is made up of 2 strands which is made up of polynucleotide. Okay, so already हमने इसके बारे में इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब that 2 strands which are present, they are not straight, वो straight नहीं है बच्चों, बल्कि they are twisted around each other. दोनों स्ट्रैंड आपस में ट्विस्ट है ऐसी। ओके, दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, नॉट ओनली अराउंड ईच अदर बट आल्सो दे आर ट्विस्टेड अराउंड कॉमन इमेजिनरी एक्सिस। एक कॉमन इमेजिनरी एक्सिस सपोज ये लेते हैं। ओके, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में ट्विस्टेड है, आपस में तो ट्विस्टेड है ही, पर दे आर आल्सो ट्विस्टेड अराउंड कॉमन इमेजिनरी एक्सिस। ओके, तो डियर स्टूडेंट, हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर को ऐसे सीधी सीधी बना दी जाती है, तो दैट इज द रॉन्ग वे। इस टाइप से डीएनए की स्ट्रक्चर ये रॉन्ग है। ओके, बिकॉज इट इज ट्विस्टेड अराउंड कॉमन इमेजिनरी एक्सिस। तो इस टाइप से डीएनए की स्ट्रक्चर को हमको बनाना होगा इन दिस मैनर। ओके, क्योंकि 2 डायमेंशनल व्यू में जब हम बोर्ड पे या नोटबुक में डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम नहीं देख सकते एक्चुअल में, पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों जो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से ऐसी चिपकी हुई नहीं है, वो ऐसी दूर है। ओके, सो वी कैन कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विद द स्टेयरकेस। वाटर टैंक पर जो स्टेयरकेस जाती है हमने देखे, वो ऐसी पोल के आजू बाजू में ट्विस्ट होती है और दोनों जो उसकी पोल्स होते हैं वो आपस में ऐसे क्रॉस नहीं करते, वो तो ऐसे दूर होते हैं और ऐसे वो ट्विस्ट करके ऊपर जाते हैं। ओके, तो वी कैन इमेजिन द staircase. Okay, so in that manner there is a particular DNA. Okay, now that DNA, it will consist of, we know, 2 strands made up of polynucleotide. That 2 strands, they are twisted. Okay, 2 strands, they are twisted. So they are twisted. मैंने कहा था कि 2 टाइप की ट्विस्ट होती है। One twist, they are twisted around each other. Okay student, 2 strands, they are twisted around each other. Second twisting, they are also twisted around common imaginary axis. तो 2 टाइप की ट्विस्टिंग है, एक तो आजू बाजू में एक दूसरे से ट्विस्टेड है। सेकेंड थिंग, they are also twisted around the common imaginary axis. Okay, so in this way there will be the formation of the helical structure or formation of the helix of DNA molecule, we can say. Okay, now the 2 strands which are twisted around each other, the twisting, it will be at right angle, clockwise direction. Okay, out of that 2 strands, suppose one strand it is in this direction, the second strand it will be in opposite direction. Okay, suppose one strand in ascending direction, second will be descending. Okay, suppose we can say first strand in forward direction, second strand it will be backward. Means 2 strands which are twisted, they have opposite in their orientation, they will be opposite in their direction. Okay, and therefore the 2 strands, they are considered as anti-parallel. Okay student, 2 strands, they are anti-parallel. Okay, so DNA, it was explained by, structure of DNA explained by Watson and Crick. DNA, it is helical structure and 2 strands, they are anti-parallel. Okay student, now
स्ट्रैंड जो है डीएनए की, वो उसका जो बैकबोन है, फ्रेमवर्क है, वो कैसे बना है? सो backbone or framework of the strand, backbone or framework. Okay, so backbone of the strand, it is main backbone of the strand. So backbone of the strand, it is now made up of alternating molecules of sugar and phosphate. Okay, so suppose one molecule sugar, then phosphate, sugar, phosphate, sugar, phosphate, like that. There is alternating molecule of sugar and phosphate. Second strand also backbone, main backbone, it is made up of alternating molecules of sugar and phosphate, like that. Okay, so main backbone of the strand, it is made up of alternating molecules of sugar and phosphate. Okay, अब यही strands को हमने मैग्नीफाई करके दिखाया है यहाँ पर. सपोज इट इज नाउ द वन स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड है बच्चों सपोज. ओके, ये वाले स्ट्रैंड को मैग्नीफाई कर रहे हैं. सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड बैकबोन, it is now made up of alternating molecules of sugar and phosphate. So sugar, phosphate, sugar, phosphate, again sugar, phosphate, sugar, phosphate, like that. Okay, second strand, again alternating molecule of sugar and phosphate. Okay, so in this way each strand, it is have backbone which is made up of alternating molecule of sugar and phosphate. Okay, in next point student, DNA strand, it will have a particular polarity, means particular direction. Okay, अब जैसे कि हमने इसके पहले के पॉइंट में एक्सप्लेन किए थे कि पहली स्ट्रैंड अगर इस डायरेक्शन की है, ओके, असेंडिंग है, सो सेकेंड स्ट्रैंड उसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो डिसेंडिंग रहेगी. ओके, अपोजिट इन ओरिएंटेशन. ओके, अब इसको एक पोलैरिटी दी गई, एक फिक्स स्टार्टिंग और एंडिंग दी गई. तो सपोज दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड, इट इज स्टार्ट विद दिस 5 प्राइम या C5 एंड कहें, तो द अदर एंड इट विल बी ऑफ 3 प्राइम और C5 एंड. ओके, सो सपोज दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, फर्स्ट शुगर का. ओके, एंड इट विल बी अटैच विद दिस कार्बन 5 ऑफ द शुगर. Okay, phosphate molecule, phosphate attach, second phosphate attached with carbon 3, again carbon 5, carbon 3. Okay, carbon 5, carbon 3, carbon 5 and carbon 3. Okay, so in this way alternating molecules of the sugar and phosphate. Okay, ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट स्ट्रैंड के बारे में. और इस स्ट्रैंड को हमने नाम दिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, 5 प्राइम का यहाँ पर मीनिंग ये रहेगा कि सबसे जो टर्मिनल शुगर है, ये टर्मिनल शुगर का कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 हियर आउटसाइड द रिंग. वो जो कार्बन 5 है उस पर जो फॉस्फेट है दैट विल बी फ्री. ओके, कार्बन 5 ऑफ दिस टर्मिनल शुगर, इट विल हैव फ्री फॉस्फेट एंड देयरफॉर इट इज कार्बन 5 एंड और 5 प्राइम. ओके, that particular end, it is given 3 prime name because carbon 1, carbon 3, carbon 2, carbon 3. So carbon 3 of this sugar, it will have free OH, मतलब वो OH दूसरे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. ओके, वो फ्री है एंड देयरफॉर कार्बन 3 of this sugar, it is free, therefore 3 prime. Here student, 5 prime, 3 prime. So 5 prime, carbon 5 of this sugar, it will have free phosphate. 3 prime, carbon 3 of this last sugar, it will have free OH. Okay, and therefore 5 prime to 3 prime. So suppose first strand, it is now 5 prime to 3 prime. बच्चों अब जो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पहली स्ट्रैंड से अपोजिट ओरिएंटेशन में, तो उसका ओरिएंटेशन हमको अपोजिट दिखाना होगा. ये जो ग्रीन इंक से मैंने ड्रॉ किया, तो दैट इज द कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड दिस कार्बन 5. ओके, तो इसका जो ओरिएंटेशन है अपोजिट है. दैट ऑक्सीजन, इट इज प्रेजेंट अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका जो ऑक्सीजन है वो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, ओरिएंटेशन अपोजिट दिखाने के लिए. ठीक है ना, जो फॉस्फेट है उसको भी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया. ठीक है, तो कुल मिला के जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, या ओरिएंटेशन जो है उसका वो अपोजिट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना, ये जो शुगर है, अब
that sugar it will be attached with their carbon 5 and second sugar at carbon 3. इसका मतलब कार्बन 3 ऑफ दिस शुगर, ये टर्मिनल होने के कारण कार्बन 3 जो है इस शुगर का, दैट कार्बन 3 ऑफ दिस शुगर इट विल हैव व्हाट, कार्बन 3 हैव फ्री OH. ओके, कार्बन 3 ऑफ दिस शुगर इट विल हैव फ्री OH. इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो क्या कहना चाहिए इस एंड को, दैट इज 3 प्राइम. ओके, आगे बढ़ते हैं. कार्बन 3 कार्बन 5, कार्बन 3 कार्बन 5, कार्बन 3 कार्बन 5, ऐसे अटैचमेंट है. अब लास्ट वाला सपोज शुगर देखते हैं. इस शुगर का जो कार्बन 5 पर फॉस्फेट है, वो कार्बन 5 वाला फॉस्फेट अटैचमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, मींस वो फ्री है. तो कार्बन 5 ऑफ दिस शुगर इट विल हैव फ्री फॉस्फेट, सो 5 प्राइम. क्लियर हो गया बच्चों? So DNA it will have particular polarity, means particular direction. Okay, first strand it will have 5 prime to 3 prime direction. तो उसका जो complementary strand रहेगा that will be 3 prime to 5 prime, means opposite in orientation. ठीक है बच्चों? 5 prime और 3 prime कैसे तैयार हुआ, कैसे उसको नाम दिया गया, वो भी आपको पता हो गया. ओके, ये 5 prime है, इसका मतलब कार्बन 5 ऑफ दैट पर्टिकुलर शुगर इट विल हैव फ्री फॉस्फेट. ये 3 प्राइम है क्योंकि कार्बन 3 ऑफ दिस शुगर इट विल हैव फ्री OH. ओके, सो इन दिस वे देयर विल बी अ पर्टिकुलर पोलैरिटी. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया मेन बैकबोन के बारे में. ओके, सो दैट इज द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड. अब दो स्ट्रैंड के बीच में क्या रहेगा उसके बारे में देखते हैं. सो at carbon 1 position of each strand, now that is now the carbon 1 position of each strand, there is the presence of any one nitrogen base out of 4 adenine, guanine, thymine, cytosine. Okay, so we know nitrogen bases basically they are up to two types, that is purine and pyrimidine. Okay, purine it is of two type, adenine and guanine. Pyrimidine they are of thymine and cytosine. Okay, so 4 type of nitrogen bases they are present in DNA. अब वो कहाँ अटैच रहेंगे DNA में, वो भी हमने देखे थे, फिर से याद करते हैं. So purine and pyrimidine nitrogen bases they are now attached at carbon 1 position. So that is the carbon 1 position of each sugar. So any one nitrogen base out of 4. For example, here there is adenine, guanine, thymine, cytosine. Any one nitrogen base, it will be attached where at carbon 1 position of each sugar. Okay. Now, जो second strand है, second strand पर अब कोई भी नाइट्रोजन बेस हम नहीं दिखा सकेंगे. Okay, because पहली स्ट्रैंड पर अगर प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड है सामने वाला, उस पर अब पाइरिमिडिन रहेगा, और पहले पर अगर पाइरिमिडिन है तो दूसरे पर प्यूरिन रहेगा. दैट इज द रूल. ओके, सो सपोज फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ DNA इट विल हैव एडेनाइन. ऑन दिस कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड देयर विल बी थाइमिन. ऑन वन स्ट्रैंड सपोज देयर इज एडेनाइन, देन वाइस वर्सा adenine. Okay, or suppose on one strand there is guanine, then there will be cytosine. If cytosine, there will be guanine, like. Okay, so on first strand suppose there is purine, on other pyrimidine. On suppose first strand there is pyrimidine, on other there will be purine. Okay, so that will be the rule. So suppose on this first strand suppose there is adenine. So adenine always paired with here thymine. So there will be now presence of thymine here. यहाँ पर thymine रहेगा. Okay. On first strand, so here there is the thymine. अगर पहले strand पर guanine है, तो there will be on sugar 1 position cytosine. So guanine it is pyrimidine. Cytosine, guanine it is the purine. Okay. So it will be attached with, that is the cytosine, that is the pyrimidine. Okay. On one strand thymine, then there is adenine.
हियर साइटोसिन, हियर देयर विल बी ग्वानिन. ओके, तो एक साइड में अगर प्यूरिन है तो दूसरे साइड में पाइरिमिडिन, एक साइड में एडेनाइन तो दूसरे साइड में थाइमिन, एक साइड में ग्वानिन तो दूसरे साइड में साइटोसिन. सो इन दिस वे देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर. बच्चों इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर. ओके, तो पर्टिकुलर डीएनए के लिए देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस पेयर. ओके, A2T and G2C. Okay, now if there is the adenine and thymine, here suppose here there is adenine, here there is the thymine, in between that there is the formation of double hydrogen bond, weak double hydrogen bond. If there is guanine and cytosine, there is formation of triple hydrogen bond. एडेनाइन और ग्वानिन के बीच में, या एडेनाइन और थाइमिन के बीच में, या थाइमिन और एडेनाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. व्हाइल इन बिटवीन G एंड C और C एंड G देयर विल बी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, तो यहां पर T2A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, C2G ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. सो इन दिस वे इन बिटवीन दैट देयर विल बी डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन टू स्ट्रैंड्स. ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसका मतलब ये डीएनए का एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, तो बोथ द स्ट्रैंड्स दे विल बी हेल्ड टुगेदर. दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, दोनों स्ट्रैंड जो होल्ड रहेगी, ओके, एक दूसरे के साथ में रहेगी, इट इज ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच विल बी एग्जिस्टेड इन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसेस. क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो प्यूरिन पाइरिमिडिन का प्रेजेंस है, इसमें पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट के लिए या पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल के लिए अमाउंट ऑफ प्यूरिन मींस अमाउंट ऑफ A plus G total purine, it will be now equal to amount of C plus G pyrimidine. पर्टिकुलर डीएनए के लिए जितने प्यूरिन्स रहेंगे उतने पाइरिमिडिन भी रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि एक साइड में अगर प्यूरिन है तो दूसरे साइड में नेचुरली पाइरिमिडिन रहेगा, एक साइड में अगर पाइरिमिडिन है तो दूसरे साइड में नेचुरली प्यूरिन रहेगा. ठीक है, तो पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल के लिए अमाउंट ऑफ प्यूरिन इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ पाइरिमिडिन. मींस प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन इक्वालिटी यहां पर हमको देखने मिलेगी. वी कैन आल्सो से अमाउंट ऑफ एडेनाइन इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन आल्सो, amount of guanine equal to amount of cytosine also. Means A upon T ratio it will be equal to 1, G upon C ratio it will be also equal to 1, or we can say A plus G upon T plus C it will be also equal to 1. Okay student, so also for the particular DNA molecule amount of sugar present in DNA it will be equal to amount of phosphate also. जितने sugar उतने ही phosphate भी रहेंगे. Okay, एंड ये जो रेशियोज है इट वाज गिवन बाय वन साइंटिस्ट नेम्ड एज चारगाफ. ओके, सो दैट इज नाउ नोन एज चारगाफ्स रूल. अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन इट विल बी इक्वल फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, सो दैट इज नाउ नोन एज द चारगाफ्स रूल with respect to nitrogen bases in DNA. Okay student, आगे बढ़ते हैं. Now in DNA there will be formation of such type of the DNA strand due to twisting. Now अब ये जो twisting है, okay, twisting of DNA to strand around each other, due to that there will be formation of such type of the groove. So that small groove is there, it is now known as shallow groove, or it is known as minor groove. So minor groove it is about 12 angstrom in dimension. It is due to the twisting of two strands of DNA. Okay, और एक ग्रुप हमको दिखाई देगी, ये वाली ग्रुप. ओके, सो दैट इज द लार्जर ग्रुप, वी विल से दैट इज डीप ग्रुप और मेजर ग्रुप.
So it is about 36 angstrom. Okay, and it is due to the twisting of two strands around common imaginary axis. क्लियर बच्चों? तो अल्टरनेटली हमको डीप ग्रूव, शैलो ग्रूव, डीप ग्रूव, शैलो ग्रूव ऐसी ग्रूव्स दिखाई देगी. Deep groove, it is due to the twisting of two strands around imaginary axis, while shallow groove, it is due to the twisting of two strands of DNA around each other. Clear? So in this way, there will be alternate deep and shallow groove. Clear बच्चों? अब ये जो डिस्टेंस है डीएनए का in between two shallow groove या two deep groove, that particular distance, it is now known as, or that particular space, it is now known as one complete turn, or we can say one complete spiral. Okay, so one complete turn, ये जो distance है, it is of one complete turn or one complete spiral. Okay, and that one complete turn or spiral, it is of 34 angstrom. Okay, वो complete होगी 34 angstrom. तो ईच, अब देखो बच्चों, यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड. सो इन दिस वे मेनी न्यूक्लियोटाइड इज देयर. ओके, हियर आल्सो मेनी न्यूक्लियोटाइड. तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ये एक पेयर हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की. ओके, सो दैट इज वन पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर. सो इन दिस वे इतना जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट टर्न का या एक कंप्लीट स्पाइरल का, ओके, इसको पिच भी बोलते हैं, एक कंप्लीट टर्न, स्पाइरल, पिच, ये तो होता है 34 एंगस्ट्रॉम. अब 34 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, एंड दे आर इक्वी डिस्टेंस. ओके, न्यूक्लियोटाइड की वहां 10 पेयर्स रहेंगी और वो इक्वी डिस्टेंस रहेगी. ओके, तो एक पेयर दूसरे पेयर के 36 डिग्री में रहेगी. सपोज ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके 36 डिग्री में ऐसा रहेगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड उसके 36 डिग्री में ऐसा रहेगा. तो इन दिस वे दे विल फॉर्म सच टाइप ऑफ द स्पाइरल. ओके, सो इन दिस वे इन वन कंप्लीट टर्न और स्पाइरल देयर विल बी नाउ प्रेजेंस ऑफ 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. इसका मतलब इन बिटवीन टू पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का अगर हम डिस्टेंस काउंट करते हैं तो दैट विल बी अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, नैनोमीटर में इट विल बी 3.4 नैनोमीटर. इट विल बी 0.34 नैनोमीटर. ओके, सो 34 एंगस्ट्रॉम एक कंप्लीट टर्न या स्पाइरल का डिस्टेंस, और दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, और बिकॉज इन वन कंप्लीट टर्न और स्पाइरल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टोटल 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are equidistant. Okay, so in this way there will be presence of that major and minor groove. हमने देखे मेजर एंड माइनर ग्रूव के बारे में देखे, फिर हमने देखे डिस्टेंस के बारे में. ये जो डायमीटर है बच्चों डीएनए का, इट इज अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम. ओके, या 2 नैनोमीटर. ओके, सो डायमेंशंस के बारे में अब हम देखते हैं. डायमेंशन में 20 एंगस्ट्रॉम दैट इज द डायमीटर और 2 नैनोमीटर इज द डायमीटर. वन कंप्लीट टर्न 34 angstrom, one complete turn or one complete spiral. Okay, distance in between two nucleotide pair, it is 3.4 angstrom. Okay, अब बच्चों ये जो एक कंप्लीट स्पाइरल है उसमें जो 10 न्यूक्लियोटाइड है, जैसा कि मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड पेयर ऐसा रहेगा तो उसके 36 डिग्री में दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा, जैसे स्टेप्स होती है चढ़ने की. ठीक है, तो वो स्पाइरल स्टेयरकेस में जो स्टेप्स है वो एक दूसरे के एंगल में रहेगी बनी. ठीक है, सो इन द सेम मैनर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो एंगल रहेगा, इट इज फर्स्ट पेयर, इट इज सेकंड पेयर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो रहेगा 36 डिग्री. ओके, तो पहली स्टेयरकेस दूसरी स्टेयरकेस उसके बीच में जो एंगल है वो है 36 डिग्री का. ओके, ऐसे 10 स्टेयर अगर हम काउंट करते हैं, ओके, तो दैट 10 इट विल बी ऑफ वन कंप्लीट टर्न और स्पाइरल डिस्टेंस. ओके, एंड दैट एंगल इट विल बी ऑफ 360 डिग्री. ओके,
तो वन कंप्लीट टर्न का जो एंगल रहेगा, वन कंप्लीट टर्न जो होगी वो 360 डिग्री की, ओके, एंड एंगल इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पेयर इट विल बी 36 डिग्री, ओके स्टूडेंट। अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड पेयर है, न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में, ओके, ये जो डिस्टेंस है इट विल बी ऑफ 11 एंगस्ट्रॉम, ओके, दैट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन और लेंथ ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड पेयर, ओके। लेंथ ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज अबाउट 3 एंगस्ट्रॉम, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो 3 एंगस्ट्रॉम की है। तो और दो पैरामीटर्स हमने देखे, दैट इज 11 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो इन दिस वे दैट इज अबाउट इट्स डायमेंशन। फिर से एक बार रिवाइज करके देखते हैं बच्चों। 20 एंगस्ट्रॉम ये क्या है? डायमीटर ऑफ डीएनए, ओके, डीएनए की डायमीटर दैट इज द 20 एंगस्ट्रॉम। व्हाट अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न और स्पाइरल, ओके, दैट इज 34 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 36 डिग्री, ओके। एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर आती है, तो इसका मतलब है कि 10 का जो एंगल बनेगा दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री, ओके। दैट 11 एंगस्ट्रॉम इट इज द लेंथ ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स की जो लेंथ है 11 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड द लेंथ इन बिटवीन और लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज अबाउट 3 एंगस्ट्रॉम, ओके। सो दैट आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशन रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ओके बच्चों। अब वन ऑफ द लास्ट पॉइंट, अब इसमें हमने देखे बच्चों कि दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल, ओके, इट विल बी अटैच्ड विद नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ओके, और एनी वन दैट इज द फॉस्फेट इज अटैच्ड हियर, ओके, सो दैट विल बी फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड, ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने इसके पहले देखे थे ये जो बॉन्ड बना था, इस टाइप से हमने स्ट्रक्चर एक बार फिर से याद कर लेते हैं। सपोज इट इज द शुगर मॉलिक्यूल, ओके, कार्बन 1 पोजीशन पर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ दैट नाइट्रोजन बेस, सपोज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन, हियर देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड था वो? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ओके, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस के बीच में, ओके, ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओके। फिर हमने देखे थे कार्बन 5 पोजीशन पर, इस टाइप से आपको अगर याद होगा ऑक्सीजन हमने दिखाए थे, बॉन्ड दिखाए थे, फॉस्फेट डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, हियर हाइड्रोक्सियल ग्रुप्स, ओके। सो इन दिस वे एक OH और एक OH यहां पर फ्री दिखाए थे, ओके। टोटल 3 OH में से 1 OH was involved in bond formation at this carbon 5 position, ये C5 पोजीशन था शुगर का, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड एक्चुअल में क्या है। अब इसके पहले जो शुगर है दैट इज द शुगर, ओके, तो ये पहले वाला शुगर मॉलिक्यूल, ओके, carbon 1 of this sugar, carbon 2, carbon 3, okay, so that carbon 3 में कौन सा ग्रुप है? carbon 2 में H और H, carbon 3 में H and OH, so that is OH group, clear? Now that OH group of carbon 3 position of sugar, और यहाँ फॉस्फेट पे ये OH फ्री है हमने देखे, okay, so that OH of carbon 3 of sugar combine with H of phosphate, okay, and there will be remole of what? There will be remole of water molecule, okay. So in this way there will be remole of water molecule and there is the formation of such type of the bond, किसके बीच में है? फॉस्फेट और कार्बन 3 ऑफ शुगर के बीच में बॉन्ड आ गया, ओके। इसको हम इंप्रोवाइज करके ऐसा लिख रहे हैं, ओके, कार्बन 3 ऑफ द शुगर, ये वाला शुगर, ओके, उसका कार्बन 3 फॉस्फेट के साथ ये वाला बॉन्ड बना रहा है, ओके, एंड लोअर शुगर कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ओके। अब बच्चों ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है
So that particular bond, okay, it is now known as phosphodiester bond. So it is now phosphodiester bond, okay, and that is the bond which will be helpful to join two nucleotide. Okay, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एंड दैट इज द पर्टिकुलर बॉन्ड विच इज नाउ नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, ये बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच विल कनेक्ट द टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड. So one nucleotide, second nucleotide, third nucleotide, many nucleotide here. Okay. In the same way, on the second strand also many nucleotide, and it is one nucleotide pair. Okay. So that strand polynucleotide. This second strand it is also polynucleotide, and in this manner DNA is made up of two polynucleotide strands. ठीक है बच्चों, तो बहुत से कंसेप्ट या डीएनए के बारे में हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में आज स्टडी की है. ओके, तो होप कि आपको समझ में आया होगा. कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो आप मुझे कांटेक्ट करें और डिफिकल्टी सॉल्व करें. ठीक है बच्चों, मिलते हैं.